Good afternoon, all. Welcome to today's Zen Living session. Myself, Annie Jose from the Community Outreach and team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Today we have Mehul Vyas as our speaker. So he will be speaking on fear of recurrence after cancer treatment. Mehul is a stage 4 throat cancer survivor. He started smoking at the age of 15 due to peer pressure. He was a chain smoker. He had a month to survive, but now he is in his 8th year of remission. Cancer has taught Mehul several lessons, but one of the biggest lessons he learned is to enjoy his life as it comes. Mehul has started his support groups on Facebook and gives presentations in the schools to urge the youth to quit smoking by sharing many of his cancer treatment pictures and journey. He is eternally grateful for his support system, that is his pillars of strength, his wife, son, and family. Welcome, Mehul ji, for today's session. Yeah, over to you. Thank you, Annie and Zenanko for having me, and it's always a pleasure to talk. So today I've been asked to talk on the fear of reoccurrence, and as Annie told that I'm in my 8th year of remission, so I have been living with this fear for 8 years, and I will live till I'm alive. So I did make a note of a few points that I have thought of that I can talk, but let this session be more interactive, like we can ask questions and discuss some topics. So to start with, the fear of recurrence, like it's also called FCR in scientific terms. Let me start with the diagnosis first. So when a person is diagnosed with cancer, it's not expected for anybody. Like it's all unexpected. So new things coming up, new terms, biopsy, this, that, those. So the person is very overwhelmed by all that information. Then there's a lot of stress. Like, what do I do now? Where do I go? How can I arrange for the money and which doctor to go? So there is a lot of stress. Just not the cancer, so the one diagnosed with cancer, but the whole family. And then there are many challenges that they have to face, like my job, my kids, my family, my parents, like whatever they have been handling, they have stress about now what will happen to them. And then there's a guilt, an element of grief or loss. For me it was guilt because I used to smoke, so I used to feel that guilty feeling was always there, that because of me, all this happened. And so every person goes through that guilt feeling and the fear of loss, like if I die, who will take care of my kids, and how will my family survive and all that. And then that's a different uh, thought process in whole. But when you complete the treatment, when the cancer survivor completes the treatment, then this thoughts process, it changes completely. Then they start thinking of different things, like, will it come back? Do I have, that's the fear of reoccurrence, that what if it comes back again? And then when after the treatment he or she realizes that it's a completely different thing, that I used to go to office, it's not like before, people don't react to me like they used to. They I lost a lot of friends. I have a whole new world, it's a new normal. People call it a new normal. And then there's a kind of difficulty that person faces when to integrate back into the society, because cancer is still considered a taboo, and people still don't readily accept a person with cancer for whatsoever reason. But then there's that guilt feeling again, hanging on your head, that because I've got cancer, people are just staying away from me. So that whole two thought processes during the whole treatment, diagnosis till the treatment, is very, very stressful. And then what is FCR? What is the fear of cancer? So it's the fear of the reoccurrence. Then there are many. When the person completes a treatment, he knows the whole cancer process. So he knows that the drugs that were used to cure me might not work when it reoccurs, because cancer is very smart. And then again, there are some triggers that usually have these thoughts come up. Like the triggers are like when you see something on social media about cancer, when someone talks about some person dying of cancer, when you have some friends or relatives who are diagnosed with cancer. So you start thinking about yourself.
And then some triggers are like your cancer anniversary. At that time, you again go back to that times and you start recollecting all those things. Then some side effects, like for me, as of now, I have trouble swallowing since the last couple of days. So I again have that fear like, hey, it's I have trouble swallowing. Did it come back? So I have an appointment on the 13th, but till then I'm still, it's like a sword hanging on my head, and it's always going to be there. So the fear of reoccurrence is always there, but it's the way the person will cope up with it. What can we do? So to handle this fear, there are every person, I think, will have to handle it on his own way. Like some people will take it as, and from my experience of 8 years, the fear starts lessening. Kind of the first year was a lot of fear, then second year, third year, gradually the fear subsides down. So again, it's from person to person. Some people I have seen who are in recurrence more than me, but they are still so scared about that cancer. Like they don't talk about it. So again, it's the personality of that person, that the way he handles it. And then what you can do is, I think, you should share your emotions. You should talk to people. That really helps. You should talk to people about your cancer, and what you can do, or if it back, what the best thing is, talk to keep in contact with your medical team, keep them updated about some changes in your body. If you feel that it's something suspicious, or it's something that could be related to cancer, let them know. Educate yourself about what side effects could be, what could be the triggers for that cancer coming back. Like if I have a throat cancer and I have trouble swallowing, then that could be a trigger. So similarly, if a person has got some brain cancer, and he finds some thought process going on differently, or some imbalance kind of thing related to the brain, those are trigger points, and immediately you need to reach out to your medical team and not avoid it. Earlier you detected, the better chances there are of your survival. And then again, you need I have made a routine for myself. Like I get up at this time, I go to the gym, I do this, I do my job. So doing that, going through the whole routine process, it actually helps me, because I don't get time to think about all those things. So it's just like smoking. If you want to quit smoking, you should not go to those trigger points, like the place where you used to go and smoke, like the friends with whom used to smoke. So you avoid them the same way you avoid those trigger points which make you think about the reoccurrence. So that really helps. Then there are many support groups that are there these days, who actually, like Zenonco, you can go talk to them. There are people like you who can help you with how they dealt with it. Okay, you are going through this, I have gone through this, so let me give you my experience, like I'm talking. So reach out to people who can help you, can talk to you, and that really helps. Then again, there are I believe, like there are some mindful strategies, like do some yoga, some positive thinking, and that really helps. Diet, reduce the stress, have a good diet, and do all what you can do. जो आपके हाथ में है वो आप करो, जो आप नहीं कर सकते, you just cannot do anything about it. So, and then practice good mental and physical things that really keep you active, and surround yourself with positive people. That is very important, because अगर कोई ऐसे negative बात करते रहता है, तो it's not really good. Every time someone saying, hey, when you had cancer, I did this. When you had cancer, I did this. That thing, some people do have that habit of doing that all the time. So keep yourself away from all those things. And what you can focus is, complete your treatment. Don't stop your treatment, and you might think that, okay, I'm doing okay now, and you stop your treatment. No, that is not really correct. And then do not stop your follow-ups. If your doctor has asked you to come down, do make sure you follow the whole schedule. Reach out to your doctor, reach out to your medical team, let them know, and then never blame yourself. Don't say that it was me and because of me. Don't do that. That's again a negative thought. So it's not your fault. Mostly it's not your fault if you have got cancer, because
Cancer किसी को भी हो सकता है. It's just a body, and that's a disease. So just like cold, flu, cancer is also just a disease, and it can happen to anyone. So don't stop blaming yourself. Very important. And then these are some of the things I really think that can help people to cope up the fear. The fear is not going to go. The fear is absolutely not going to go. It's also always going to be there till you live. Because even after 8 years of my cancer, I still, every day something goes wrong. That comes in my mind. So the whole treatment is so experience in your life that you can never forget that. So just change your thought process and do something that keeps you busy and away from those thoughts. I think that is got something that really going to help you. Again, you have to live with it every day. It's like that. It's like that bear in the room. Bear. It, it is always going to be by you. It's going to sometimes become small in size. Sometimes you hit it. It's going to become big. So it's going to. You have to live with it. It's going to sleep next to you all the time. So it's the cancer recurrence fear is always going to be there. Accept it. Acceptance really helps. If you accept that you have to die one day, the fear of death, I think, goes. I know I have to die. Everyone who is born has to die, right? But then if you kind of stay in denial, that is a problem. If you keep denying, no, not me, not me, that's not going to actually help. So again, it's like the positivity you take. It's like a half glass empty or a half glass full. If you keep your thoughts like a half glass empty, you will not be happy. If you keep your thoughts like a half glass full, it's really going to help. Okay, I survived. My thought process, changes when I go to the hospital for my, whenever I go for checkups. I see people on those same beds where I used to be there once upon a time. Like when I walk past those hospital beds, I see them with chemo tubes in their arms and all. And I start thinking, hey, I was there. I'm in a better position today than them. So stay positive. Like that helps me. Chalo, I've been through this. So I'm one step ahead of them. So don't feel bad about it. Think positive. Like I have that habit of looking down and not up. अपने से नीचे कौन है उसको देख के थोड़ी तसल्ली मिलती है कि आई एम अ लिटिल इन अ लिटिल बेटर प्लेस. मेरे से ऊपर भी लोग हैं, but what makes me think good is looking that I'm in a better place. So that really helps. I've seen many people, many cancer survivors, जो कैंसर को छोड़ते ही नहीं है. कैंसर छोड़ के जाता है लेकिन वो कैंसर को नहीं छोड़ते. So वो मत करो. Live with it. You have to live with it. It's a part of you now. It's your body, your cancer. आप में हुआ है. It's a part of you. Accept it. जैसे भी है. And those like the side effects are going to be there all your life. Like I have a problem talking. I have problem chewing. So that keeps reminding me of my cancer. So I do techniques like I if it if those thoughts come in, I turn on the TV or maybe I start reading something. So do some techniques that can divert your attention from those triggers that might get you thinking of that fear of cancer. So I think these are all the points I wanted to talk about. If you have any questions, maybe we can just as a group can discuss on it. Nice to see Anuradha ji. Mehul, I just have a question. So you said that, okay, so people might be having negative thoughts. So joining any support group or going for any therapies, can that help the patients Yes, after cancer treatment? absolutely. That's what I was trying to point out, that you need to be more vocal about it. Some people try to hide it, but that the stress remains in you, and that's the cause of the reoccurrence actually. So the more open you are, the more vocal you are. You come to meet people like you, and then I like to talk about it because I feel a bit lighthearted. Like, okay, there are people around me who are like me. So that really helps. So yeah, support groups absolutely, like Lovely's Cancer is there. I make sure I be there in most of the meetings. So
that makes me feel good. Anything that makes you feel good, you should do that. Anyone can ask questions. Anuradha ma'am, would you like to discuss something? Hi, hi Mehul, hi everyone. थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में, आज पूजा वगैरह थी घर में तो, बट नाइस इंस्पायरिंग सेशन मेहुल. आई जस्ट वांटेड टू हियर कि कैसे आप बताते हो सब चीजें एंड ऑल. तो आपसे तो सब बहुत अच्छे से इंस्पायर होते हैं एंड यू कीप इंस्पायरिंग एवरीवन. मतलब इतनी डिफिकल्टीज के बाद जैसे और सबकी जर्नी सुनती हूँ तो आई फील कि भगवान ने मेरी झोली में तो उस हिसाब से कम ही कष्ट डाले. मतलब आप लोगों जितना ब्रेवरी से उसको फॉट किया पूरा, ये जो आपका निकला था जॉब वगैरह ये सब, उसके बाद तो मैं फिर भी ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भाई मुझे उस हिसाब से बहुत कम तकलीफें दी. पर यू आर जेम ऑफ अ पर्सन इंस्पायरिंग सो मेनी लाइव्स. और इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस, सैल्यूट टू यू. अरे थैंक यू अनुराधा जी, हम सब एक साथ ही है इसमें. मतलब ठीक है, बट जो भी है बॉडी है. किसी को मेरा गले का कैंसर था तो वहां पे प्रॉब्लम. बट देन अभी भी देखो, मैं वही बोल रहा था कि मुझे अभी swallowing में प्रॉब्लम हो रहा है लास्ट कपल ऑफ डेज से. तो वापस वो टेंशन आ गया है कि अरे गले में आई कैन नॉट स्वॉलो. तो डॉक्टर को फोन किया तो 16 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला. इतना बिजी है वो भी कि बोला बाद में. मैं बोला अरे ठीक है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि बाकी बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई नो दैट इट माइट बी समथिंग विद माय विद सम अदर प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है या मेरा वॉइस. तो द मोर यू एडुकेट योरसेल्फ, आपको पता होता है कि हाँ डॉक्टर तो बोलेगा, लेकिन उसके पहले खुद ही अपना डॉक्टर बन जाओ. अंजलि जी भी आ गए. Being positive makes a lot of difference. That's it. और the mind is the most powerful machine. Power station. Yeah. जितने भी सर्वाइवर्स अपने ऐसे will agree to it कि जो mind है वो, and it's scientifically proven, the mind can change the whole. It can react, make the body react in a different way. I agree. अंजलि जी शेयर करेंगे. हेलो मेहुल जी, कैसे हो? अच्छा लगा आपको देख के. मुझे भी अच्छा लगा. सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर. मैं तो बोल रहा कैसे एकदम मस्त. देखो फिट. कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे. प्रॉब्लम ये था कि मुझे भी अभी जस्ट सॉल्विंग था. प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा 2-4 दिन से. डॉक्टर को फोन किया, बोला आ जाओ. उतने में ये एनी बोली आपने को सेशन करना है फियर ऑफ रिकरेंस. मतलब एकदम टाइम पे आ गया है सेशन. सो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बट 13 तारीख को अपॉइंटमेंट है, देखते हैं जो है वो लड़ लेंगे. नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वेदर. आई थिंक फटाके की धुआं वगैरह होगा ना, और पानी भी. यू आर इन इंडिया राइट नाउ, राइट? नहीं, आई एम इन द यूएस, बट मुझे लगता है वो मसल्स प्रॉब्लम वगैरह कुछ होगा कुछ. तो आई डोंट थिंक दैट विल बी, बट जो भी है टेंशन नहीं है. नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा. थोड़ा हेल्थ इशू तो आते रहता है, यू नो, इवन आई गेट सम टाइम. तो सब ठीक हो जाता है. वी टेक स्ट्रेस आल्सो ना. हम लोग स्ट्रेस भी लेते हैं, यू नो. हम दिखने में बहुत पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन हमको भी स्ट्रेस होता है. सेम विथ मी हियर आल्सो. सम टाइम आई एम आल्सो इन स्ट्रेस. बहुत कुछ हो जाता है, फिर ठीक हो जाती है, नॉर्मल होती है. डोंट वरी, एवरीथिंग विल फाइन. माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू एंड वी आर फाइटर्स. थैंक यू. मैं मुझे स्ट्रेस आया तो मैं तो आपकी वीडियो देखना चालू करता हूँ. सब स्ट्रेस गायब हो जाता है. गायब हो जाएगा. डोंट वरी, हो जाएगा अभी. अभी एक बेली का बहुत अच्छा मैं वीडियो डालने वाली हूँ. मस्त हो जाएंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला. मैंने अभी तक डाला नहीं है इसको. मैंने सीक्रेट रखा हुआ है. मैं बोली एक ओकेशन आएगा फिर डालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम मंगाए हैं. और मैंने ये भी बोला है अपना मैडम को, डिम्पल जी को, एक बेली का सेशन रखते हैं. माय गुरु जी, शी टोल्ड मी आई डू फ्री ऑफ सेशन फॉर योर कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स. तो दिसंबर में करने वाली है. तो मुझे बताना कि डेट कौन सा चाहिए. इट्स वेरी एंजॉय. मेल फीमेल एवरीवन कैन जॉइन. एंड मेहुल यू आप जॉइन, आपको भी जॉइन होना है. मुझे उसके पहले मैं भी. अंजलि जी मैं भी. आई एम आल्सो इन लाइन. मैं आपको याद कर रही थी. मैं बोले आपको पर्सनल कॉल करूंगी. मैं दिसंबर में होने वाला है. एंड ऑल द सर्वाइवर्स एंड पेशेंट एवरीबॉडी कैन एंजॉय. बहुत मजा आएगा. अच्छा हो गया आपने बताया. We have to get costumes also. क्यों, क्या मेल जी सुना नहीं मैंने.
मुझे मेरा बेली कम करना पड़ेगा उसके पहले। नो नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बेली ज्यादा तो मस्त हिलता है, यू नो। मेहुल भी मेरे को तो 2-4 साल लग जाएंगे सेशन अटेंड करने के लिए। नो 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 अनुराधा जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बेली डांस इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं पतला ही होना चाहिए। आई नो मैं तो मोटी भी हूँ तो आई डोंट माइंड, मेरे को डांस करना है तो आई विल डू। यस यस बिंदास बिंदास। एक्चुअली वो बेली डांस होगा क्योंकि मेरा बेली ही डांस करेगा, मैं तो ऐसे खड़ा रहेगा। You can get your wife also together, साथ में ले आना वाइफ को। She likes to dance, वो ट्राई करती है लेकिन उसको जमता नहीं है, बट या नहीं बोली जब टेक्निक लर्न कर लेना, टेक्निक आ जाएगा ना सब कुछ आ जाता है। Not an issue, and I want you to be there also, मेहुल जी, मैं आपको देखना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा होगा बता दिया। मेरे ग्रुप में से और भी लोग ज्वाइन करेंगे। यस मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। या ना मैं आपको ना कंफर्म करने के लिए फोन करने वाली हूँ अनुराधा जी, मैंने बोला बिल्कुल। हाँ, सबका क्या मैच होता है। हाँ, डेट्स कुछ है क्या, मतलब आई विल बी बिजी अराउंड 17 to 19 दिसंबर, लाइक थोड़ा उस ड्यूरेशन में तो नहीं होगा ना? नहीं, मैं मेरी मैडम को पूछती हूँ कौन सा डेट वो रखना चाहती है। उसने सामने से मुझे कहा अंजलि तू बहुत कुछ कर रही है तो तेरे लिए मैं सेशन फ्री देती हूँ, चलो तुम्हारे पेशेंट्स, तुम्हारे सर्वाइवर्स लुकिंग एट यू, योर यू नो स्किल एंड ऑल, आई वांट यू टू जाओ करके। और मैं कॉस्ट्यूम मंगाते रहती हूँ उनके पास से, ये बेल्ट लाओ वो बेल्ट लाओ। तो मैंने बोला ठीक है आप बोल रही हो तो मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मैं पे कर दूँ। बोला नो नो इट इज फ्री। तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि आपने भी कहा था डांस सीखना है। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा और उसके साथ में फिर हम एक ऑनलाइन उसको पूरा YouTube पे लोड भी करेंगे कि हम लोगों ने सबने मिलके इतना अच्छे से किया। नहीं ये गलत है, वो सोशल मीडिया पे नहीं डालने का, नहीं तो फिर मैं क्यों मेहुल जी क्यों? अरे हम लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कितना डालती हूँ सोशल मीडिया पे। अरे हमारे ग्रुप में आप डांस अच्छा करते हो। आप मेल भी है, हम बताएंगे। अरे मेल भी है हमारे साथ, मेरे साथ एक मेल भी है, बताऊंगी मैं। एक्चुअली मेहुल वो एक्चुअली इट मैटर्स कि स्पिरिट की हम लोग क्या सर्वाइवर्स हैं और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो दैट इज, ये कोई हमारा नहीं देख रहा कि हम कितने डांस कर रहे हैं तो 10 में से 10 मिलने की 8 मिलने, ऐसा कुछ नहीं। वी आर ट्राइंग दैट इज बेस्ट। 10 में से 4 भी मिल रहे हैं तो आई विल डू। नहीं तो मुझे 10 में से 2 भी आ रहे हैं मेहुल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे। करेंगे। नहीं करेक्ट, मुझे बाकी लोग मुझ पे हंसने देख के हंसेंगे उसका कोई टेंशन नहीं है। नो देखो हंसना, बेवकूफ लोग हंसते, बेवकूफ होते हैं ना वो हंसते हैं, बाकी लोग क्या बोलेंगे? यस यू हैव डन, स्पिरिट है, प्रॉब्लम क्या है? एंड वन मोर थिंग मेहुल, आपको कब से ये चिंता होने लगी कि लोग क्या कहेंगे? आई डोंट थिंक कोई हंसेगा। मुझे लोगों की चिंता नहीं है, बिल्कुल मुझे मेरी चिंता है। जब मैं खुद को देखूंगा तो मैं अरे यू विल बी द हैंडसम सेक्सी बॉय, हमारे ग्रुप का सेक्सी बॉय। एंड दैट विल बी लाफ्टर थेरेपी। बाद में जब भी लो फील हो रहा है तो अपना ही डांस देख के हंस लो, खुशी हो जाएगी, है ना? सही। मेहुल जी आपका एब्स वगैरह नहीं देखना है मुझे। यू वेयर अ शॉर्ट टी शर्ट and one tight pant, that's all. Abs देखने की जरूरत नहीं है, don't worry. Only smiling face and do whatever we are doing, chest circle, hip circle, you know, मजा आ जाएगा उसमें. It will be a fun, like you know. मैंने सोचा है सबको, मेरा मिस ने बोला ऐसा करते हैं अंजलि, मैं बोला ठीक है, they will be very happy. मैंने डिम्पल जी को मैसेज भेजा है and we'll do it and you will be fine, don't worry. कुछ नहीं होता है, हमारे साथ अभी कोई फाइट नहीं कर सकता है. We become a so fighter ना, तो लोग जो होते हैं ना जम्स वगैरह, वो भी अपने पास आने के लिए डरते हैं, ना थोड़ा अटैक करते हैं वो लोग, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नहीं मुझे तो लोग जानते हैं कि ये तो मतलब तलवार निकाल ही देता है। yes. और आज सर वेदर भी डिपेंड करता है, बिकॉज यू आर इन इंडिया नो, पहले अभी भी इंडिया आए थे डैडी जब एक्सपायर हो गए। हाँ वो भी होता है शायद, मे बी दैट पॉसिबल, आई थिंक। या मुझे टेंशन नहीं है, मैंने कोई टेंशन। डोंट टेक टेंशन, आप टेंशन वाले लगते भी नहीं है। आपकी इतनी गाड़ी है, इतने प्लेन्स आते हैं, मैं तो सोचती मैं उड़ूं आपके साथ। मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती, अरे मेहुल ने प्लेन डाला है, छोटा सा प्लेन है, पता नहीं यार कब का है, चलो उड़ते हैं उनके साथ। मैंने एक ही सीखा, टेंशन देने का नहीं, लेने का नहीं, देने का। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। या आज क्या है, मतलब आज लोग कम लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह है ही नहीं आज। न्यू ईयर है ना सबका, आज न्यू ईयर है। न्यू ईयर, करेक्ट राइट। सब फैमिली गैदरिंग वगैरह होता है ना। यस
आज हमारे यहाँ भी वो मनाते हैं, मतलब अन्नकूट साई भाजी जिसको बोलते हैं ना। तो फिर सुबह since 8 in the morning I was there in the kitchen. अभी खाना खा के ऊपर आई, then just I saw कि अरे मेहुल का सेशन चल रहा है, तो I just logged in. मैं तो मेकअप कर रही थी, मैंने बोला लिपस्टिक लगाओ ना पहले फिर जाऊं मैं, because I'm traveling tomorrow. मैंने बोला लोग मुझे देखेंगे अंजलि ऐसा कैसे हो गई, थोड़ा तैयार होके जाओ. I'm going to Panchgani tomorrow and coming back on 10th. Good, enjoy. घूमने जा रही हूँ. पंचगनी हम लोग जाते थे, मैं पूना में रहता था पहले, पिंपरी चिंचवड में, तो एवरी वीकेंड संडे वनडे जाते थे हम लोग, वो मैप्रो गार्डन में जाते थे महाबलेश्वर. Yes, और वहाँ का स्ट्रॉबेरी इंडिया में कम, तो स्ट्रॉबेरी स्मूदी अच्छा लगता था सबको, तो हम वो पीते थे. फिर बाद में आते आते रास्ते में बियर पीते थे, मतलब वो बिगड़ा बच्चा टेबल लैंड में नहीं जाते थे. सुधर गया, सुधर गया. अभी वो सब इंटरेस्ट नहीं था, अभी सब वो अच्छा लगता है. पहले वो खाली अपना खाना पीना धिंगाना वही था. पहले वो वाली उम्र थी. नहीं, पहले वो वाली उम्र थी ना मेहुल. ए क्या बोलती तू, अब दूसरा मैं भी वही बोल रहा था कि अभी भी वैसे ही है, लेकिन अभी क्या शादी हो गया ना, तो बीवी के हाथ में सब रिमोट है, मतलब वो I know, yes. थोड़ा ब्रेक लग गया सब. चलता है, लाइफ इज लाइक दैट. हर दौर आता है इंसान का ना, हर वक्त आता है. नहीं करने, जो भी करने का पूरा करना. Yes. 100% you must do. Yeah. Yes. On any, do we end the session like this? I don't think there's any. Just okay. इसमें क्या और भी लोग हैं ना? There are many people. I think we should end this. There are not much people today, I think. और भी है, पूनम है, बरखा है. Yeah, please. असलम is there. Yes, तो बात कर दे ना. बरका जी, पूनम जी, प्लीज आइए, बात कीजिए. कुछ वीडियो नहीं दिख रहा उनका. या हंस के मेरे आंख से पानी आ रहा है, देखो. या बरखा जी, हेलो बरखा जी. म्यूट है. बरखा जी म्यूट है. हेलो. Yes. I was listening to all your talks. Friendly talks. Hello. Yeah, we can hear you, Barka ji. Yeah. It was very inspiring, Mehul ji. I always try to attend the sessions Zen and Koka. अरे आप मुझे ऐसे मैसेज कर दो ना, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, sure. You don't have, if you feel like talking, you can directly reach out. You don't need to wait for any session or anything. I'm always there. I wanted to ask food, like food meal, so many people say you shouldn't have this, shouldn't have that. तो वो समझ में नहीं आता कि किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो. कोई कहता है एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना, कोई कहता है शुगर नहीं खाना, कोई कहता है ग्लूटेन नहीं खाना. तो आई गेट सो कंफ्यूज्ड. नहीं, एक बात तो अभी आई एम अ सर्वाइवर, अनुराधा जी से सर्वाइवर, अंजलि जी से सर्वाइवर. आप तीनों का सेम ही आंसर होगा कि आप सब खाओ, लिमिट में खाओ. कोई भी देयर इज नथिंग दैट इज, मुझे कभी बोला नहीं कि ये मत करो, पर लिमिट में कर. मतलब कोई आप जो भी आपको बोलता है ना कि दूध मत लो या चॉकलेट मत खाओ, जो भी, तो उसको बोला एविडेंस दिखाओ. अगर कोई ज्ञान देता है तो उनको बोलना मुझे एविडेंस दिखाओ कि ये गलत है, ये सही है. मैं अभी भी मेरे पास सब, मेरे अभी टेबल पे नहीं है, लेकिन मैं सब स्वीट्स खाता हूँ, दूध, एवरीथिंग आई डोंट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट आई डोंट ओवरडू इट. आप अनुराधा जी और अंजलि जी का से भी पूछिए, वो भी सर्वाइवर्स है, दे विल डेफिनेटली हैव द सिमिलर आंसर. तो आप इंटरनेट, ऑनलाइन, वो सब एक बार आपको, बट लेट योर डॉक्टर नो, आपके डॉक्टर की बात सुनो. आपके डॉक्टर सेज ईट एवरीथिंग, बट जैसे पीपल से लाइक एक संजीवनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी आप ज्वाइन, तो वो लोग तो बहुत चीजें मना करते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, तो यू विल बी हेल्दी. आप डॉक्टर की बात सुनिए, आप अनुराधा जी और अंजलि जी से भी सुनिए, देखो क्या बोलते हैं. हेलो बरका जी. हेलो. मैं तो बिलीव
मैं बिलीव करती हूँ, आप सब खाओ, जो चीज आपको अच्छी लग रही वो खाओ, जो चीज आपको बॉडी को सूट नहीं करेगी वो आपकी बॉडी अपने आप ही जवाब देगी आपको कि ये अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आपसे अपने आप ही खुद अंदर से इच्छा नहीं होगी कि नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज खाऊं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आप जैसे कीमो है या कुछ भी बॉडी में वीकनेस है, तो शरीर को सब चीजों की जरूरत है। तो लोग कहते थे शक्कर मत खाओ, पानी मत, ये मत पियो, दूध मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स मत लो, बट दैट इज नॉट करेक्ट। डॉक्टर्स कभी नहीं कहते हैं, मतलब मैं सेकेंड टाइम भी अभी जब मेरे को रियकरेंस हुआ टाटा मेमोरियल में, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सुदीप गुप्ता, साउथ ईस्ट एशिया के बेस्ट डॉक्टर है, उनसे मैंने पूछा सर डाइट कंट्रोल कुछ, तो ही सेड नो, बस खुश रहिए मस्त रहिए। तो आप जो भी खा सकती हैं, जो आपका मन करे वो खाइए, बस लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि हम अपने आप ही ओवर ईट कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमसे डाइजेस्ट नहीं होगा। बट द थिंग इज जो हम खा रहे हैं वो खा पाए, मन से खा पाए, ऐसे नहीं। और उसके लिए गिल्ट भी ना करे, लोग कहते थे शक्कर मत खाओ, अरे भाई क्यों नहीं खाओ, हमारे शरीर को जरूरत लग रही तो हम खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएं। ऐसा तो लाइक व्हेन माय रेडिएशन वाज गोइंग ऑन तो मैं आइसक्रीम खूब खाती थी बिकॉज जैसे लगता गर्मी और ये गर्मी, आई शुड नॉट लिसन, बट फिर पीपल से नहीं मीठा क्यों खा रही है, मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर ये सब कहते हैं, तो फिर वो तो डर लगता है कि अगर गलत ऐसा तो नहीं होता कर है रहे। ना, नहीं गलत नहीं कर रहे, वही मैं बोल रही हूँ, उसका गिल्ट नहीं करना। जो चीज आप खा रहे हो उसको पॉजिटिव वाइब के साथ खूब एंजॉय करके खाओ। और एनीबडी हु सेज ना, उसको वही मेहुल ने जो बोला एविडेंस दिखाओ। और फिर लोगों को एडवाइस करने में क्या है, जर्नी तो हम देख रहे हैं ना कि हमारी जर्नी कैसी जा रही है। तो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, लोगों की बातों से नहीं। एंड दे डोंट नो द पेन आई एम गोइंग थ्रू, आई नो द पेन आई एम गोइंग थ्रू, सो आई हैव टू जज व्हाट आई हैव टू डू। दे आर नोबडी टू टेल मी कि ये करो ऐसे करो, उनके कहने से थोड़ी ना मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक तो मुझे अपने आप से होना है। तो आई विल हैव टू जज माई सेल्फ कि मुझे क्या खाना है और मैं क्या खा सकती हूँ। तो अगर आपको आइसक्रीम खानी है रेडिएशन में, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, ईट दैट, क्योंकि हम उसके अलावा और भी तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं ना। मेरा भी ऐसे ही था बरका जी, जब मेरा गले का था रेडिएशन वगैरह तो पूरा कुछ भी नहीं था, ट्यूब था गले में। जब खाने को चालू किया, स्टार्टेड विद दही और आइसक्रीम, उससे ही मैंने चालू किया। और ऐसे कई भी एविडेंस नहीं है, मेरा तो ट्रीटमेंट यूएस में हुआ था, कभी भी ऐसे नहीं बोला था मुझे तो वाइन भी ओके था बोला पी, ओके हाँ हफ्ते में एक बार। तो ऐसे कोई है ही नहीं, मतलब उसमें लोग जो बोलते हैं ना यहाँ वहां से व्हाट्सएप व्हाट्सएप से सुन के बोलते हैं, उसका एविडेंस। और ऐसे लोगों से दूर ही रहो। डॉक्टर जो बोलता है ना एक बार, बस उसमें भरोसा रखो। डॉक्टर के भी बात पे अगर भरोसा ना है तो कहीं और डॉक्टर को पूछो। लेकिन हम एग सब भी खा सकते हैं ना, लाइक डॉक्टर से कि प्रोटीन मेरा लो है, प्रोटीन खाओ, तो लोग कहते हैं एग नहीं खाओ, तो मैं एग नहीं खा रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ। नहीं, डॉक्टर की बात सुनिए, लेकिन जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे हम सब्जी फ्रूट्स धो के खाते वगैरह, वो तो करना चाहिए, है ना। जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें आपको लगता है केमिकल है, मतलब जैसे रेड मीट है या ऐसे कुछ है, उसको थोड़ा टेम्पररी बंद कर दीजिए। जिसमें नहीं नॉन वेज तो आई डोंट हैव, हाँ, एग आई हैव जस्ट जिसमें केमिकल वगैरह डाल सकते हैं वो चीजें अवॉइड कीजिए। बाकी कुछ भी मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है कोई चीज से, तो आपका बॉडी, जैसा अनुराधा जी ने बोला, आपका बॉडी इमीडिएटली उसको रिएक्ट करेगा। अभी किसी लोगों को किस चीज का एलर्जी होता है, देन द बॉडी विल रिएक्ट टू इट। तो आपको पता चला रहा है ये खाने से मेरे को प्रॉब्लम होता है, तो वो मत खाइए। बाकी लोगों की बात मत सुनिए, डॉक्टर की बात सुनिए। मस्त मजा में एकदम आराम से रहो, टेंशन नहीं। टेंशन नहीं लेवानो, बराबर છે या बरखा जी, बिल्कुल टेंशन नहीं मत लेना। अच्छा खाओ, अच्छा फूड खाओ, गरम फूड खाओ। पीपल विल टेल लॉट ऑफ थिंग्स, डोंट गो थ्रू देम। डॉक्टर जो बोलते हैं फॉलो दैट, क्योंकि आपको इसमें से निकलना है। पीपल विल नॉट कम टू हेल्प यू आउट, यू नो, इट्स योर जर्नी। यू हैव टू बी पॉजिटिव, जो अच्छा लगता करो, डांस करो, मेकअप करो, मजा करो, मूवी देखो, अच्छी अच्छी पिक्चर देखो, यू नो, तो पॉजिटिविटी आएगी। कीमो चल रही है, लाइक एवरी फ्राइडे होती थी। हाँ, पीपल से ये मत खाओ तो कीमो की टेंशन, फिर ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, तो फिर इतनी सारी टेंशन बढ़ जाती है कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ। उन लोगों से दूर रहो, ये गॉसिप वाले हैं ना, उन लोगों से दूर रहो जो आपको एडवाइस देते हैं ना, हट जाओ उनसे दूर रहो। क्या गेट गुड फ्रेंड्स। मैंने तो कितनों को छोड़ दिया, जिंदगी से क्रॉस कर दिया। अच्छे लोगों से दोस्ती करती मैं, जिससे मुझे सीखने को मिलता है, जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ताकि गॉसिप वाले ये नहीं, अब मुझे बोलते हैं अंजलि तू ऐसा करती है। अभी मुझे एक मैसेज आया, वेरी फ्रेंकली आई टेल यू, मुझे मैसेज है अंजलि सब बंद कर दे तू तेरा। मैंने बोला क्यों? ही इज अ कैंसर सर्वाइवर, शी इज आल्सो सर्वाइवर।
तू बहुत कर रही है, बहुत हो गया तेरे बॉडी अभी ये। मैंने बोला अरे यार तू चुप रहे, मेरा पैशन है वो, आई विल डू टिल। तो मुझे पता चलता है नेगेटिविटी वहां पे। मैंने बोला तुझे करना तू भी कर, बट डोंट, नोबडी कैन स्टॉप मी, व्हाट इज माय पैशन आई विल डू। बोलते नहीं मीडिया में बहुत तू दिख रही है, वो कर रही है। मैंने बोला नो, आई विल नॉट स्टॉप, अभी तो और मैं बहुत करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ओडिशा नेक्स्ट मंथ, और दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुझे बुलाया है, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माय पेशेंट्स एंड माय सर्वाइवर्स। यू विल फाइंड, डोंट वरी, आप अच्छा खाओ, अच्छे फ्रूट्स खाओ, लेकिन फ्रूट्स को धोना, छिलके निकालना, जिस तरह से हम लोग खाते हैं, ध्यान रखना। भाजी को गर्म पानी में धो के थोड़ी देर डुबा के, पालक की भाजी होगी उसको डुबा के रखो, पत्ते वाली भाजी, कोई भी भाजी हो, नमक के पानी में थोड़ी देर 2 घंटा सोक करके रखो। क्लीनिनेस एंड हाइजीन, बस आप 2-3 बार नहाना धोना करना। मैं तो 3 बार नहाती थी कीमो के टाइम, क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आती थी, एक तरह से गंदी बदबू आती थी, तो मैं 3 बार नहाती थी। मुझे नहीं होता था, लेकिन मैं अपने आप को हाइजीन रखती थी। देन आई शुड डू माय मेकअप, भले मुझे कीमो होता था, फिर मैं मेकअप करती थी, मिरर के सामने बैठ जाती थी। आई वाज वेरी लाइवली। एक दिन कीमो का दिन जरा ऐसा लगता था थकी हुई हूँ, दूसरे दिन वापस मेरा चालू हो जाता। लवली बंडाना इज अ स्टाइल, अच्छी अच्छी बंडाना मिलती है, अगर आप मेरे पास होती मैं आपको लाके देती, मुंबई में होती तो। वेयर आर यू? जयपुर। ओ माय गॉड, नहीं तो मैं आपको बॉम्बे से दिला देती, मस्त मस्त बंडाने से। हमारे टाइम पे नहीं थे ऐसा बंडाने। यू कैन वेयर दैट, यू कैन डू मेकअप, अपने आप को देखो, फोटो पोस्ट करो, खाओ पियो, मस्त मस्त થઈને રહેવાનું। जैसा मेहुल जी ने बोला, टेंशन नहीं लेવાનું, मस्त થઈને રહેવાનું। यस यस। और बरखा जी, हम लोग हैं, आपको जब भी लो फील हो, कुछ हो, तो हमारी टीम है, मैं हूँ, अंजलि जी, मेहुल, किसी को भी बात करिए, हम लोग आपको फुल ऑफ लाइफ कर देंगे, हंसाएंगे, मस्ती करेंगे आपके साथ। तो एनी टाइम आपके 12 बजे 1 बजे मेहुल जी मेनी टाइम्स, बट आप लोग से पहली बार बात हो रही है, उनको तो बहुत बार सुना हुआ है मैंने। ओके। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ऐसा, अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं ना, हमको उनकी बात सुननी पड़ती है, तो हम उसके लेते हैं अपने कान में फिल्टर लगा दो, इस कान से सुनो, उस कान से निकाल। बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें मुझे बताई। अगली बार से वो अपने आप ही नहीं बोलेंगे, आपको आके बोलते हैं ना दूध नहीं पियोगे ऐसे कुछ, अरे वाह थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताना किसके साथ ऐसा हुआ, सच्ची में किसके साथ ऐसा हुआ आप बताओ, बहुत अच्छा है। मैं तो ऐसे ही टेरर में, और फिर बहुत ज्यादा तंग करे तो घर के लोगों को बोल दो कि बोल भाई अभी पेशेंट्स हो रहा है, आराम से बाद में आना। जय राम जी की, दैट्स ऑल। हर चीज का रास्ता अपने आप को निकालना पड़ता है। हम लोग सर्वाइवर्स है, मतलब हमने ये, हम आपको कभी झूठ बात नहीं या गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें से वी हैव पास थ्रू इट, हमने एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे भी ऐसे काफी लोग बोलते थे, लेकिन आई जस्ट बिलीव माय डॉक्टर। डॉक्टर को पूछता था ये ऐसा बोल रहा, डॉक्टर बोलता उसको उसका मत सोच, एविडेंस है क्या। एंड देन मैंने खुद का रिसर्च किया, मतलब काफी, अगर आपको चाहिए ना तो मेरे पास काफी मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो आपको, रिसर्च सब्सटेंस है जो मैं आपको भेज सकता हूँ कि ये रिसर्च में बताया कि ये प्रॉब्लम में नहीं करता। मतलब हर एक बॉडी अलग है, बट ये जो लोग बोलते हैं शक्कर दूध, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको अगर कोई डाउट है ना, कभी भी किसी को भी हमको मैसेज कर दो, पूछ लो, हम आपको सही, मैं आपको विद एविडेंस भेज दूंगा ये जो बात कर रहा है ये गलत है, ये सही है। सबसे बढ़िया बात तो फोन रखने के बाद बिंदास होकर अंडा खाओ, यू विल एंजॉय इट। ओके। हाँ, मैं सन से कि आप किसी की मत सुनो, आप खाओ, सब कुछ खाओ, आप ये मत सुनो वो मत सुनो, बट मैं थोड़ा कैरिड अवे हो जाती हूँ कि नहीं उन्होंने मना किया है तो नहीं खाना है। देखो जो डिजीज हो गई है उसको हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है। पहले कोई हमको बोल देता था पहले अंडा खा रहे थे तो इसलिए हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, आपको अंडा खाने की इच्छा है, आप अंडा खाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ऐसा। और व्हाट्सएप पे जो आपको मैसेज वगैरह आते हैं ना, कैंसर के लिए, हील के लिए, ये करो वो करो, अवॉइड दोस थिंग्स। कुछ भी भेज देते हैं लोग, तो मुझे भी भेजते कि हॉस्पिटल में फ्री हो रही ट्रीटमेंट। तो मैंने एक को फोन किया, बोलता नहीं मैडम ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने बोला फिर क्यों भेजते आप लोग? बोलता मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया। सो डोंट ट्रस्ट दैट मैसेजेस। कोई भी भेज देते, फॉरवर्ड कर देते, इट्स नॉट ट्रू, कुछ नहीं होता है। व्हाट्सएप मैसेज इज नॉट ट्रू, ऑलवेज रिमेंबर, और सब फेक होता है। आप जो लोगों से बात करेंगे ना, दैट इज ट्रू। और आपकी जिंदगी जर्नी इतनी अच्छी हो जाएगी ना। लोगों को अवॉइड कर दो, ऐसे जो मैसेज वगैरह देते हैं ना, अवॉइड कर। जैसा अनुराधा जी ने कहा, कान को फिल्टर कर दो, दैट इज द बेस्ट वे। यू विल एंजॉय योर जर्नी एंड विल कम आउट फ्रॉम दिस। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, वी ऑल आर देयर विद यू एनी टाइम। रात के 1 बजे 2 बजे, डोंट वरी, ऐसा नहीं लेट हो जाएगा, नो, कभी भी आप फोन मैसेज कुछ भी कर। और हमारे मेहुल जी है, इतने बड़े गुरु है हमारे,
हाँ उनके पास बहुत नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है। एक दिन जाने का है सबको, सबको जाने का बराबर एक दिन, तो खा पी के जाने का ना, चुपका सुपका काय को जाने का, मजा करके जाने का। मतलब ऊपर जाके फिर ऐसे लोगों लगने का कि अरे ये नहीं किया वो नहीं किया, और मतलब दिस इज ऑन द लाइटर साइड, बट बी केयरफुल एंड देन ऐसे कोई नहीं है। अगर आपको कैंसर में कोई भी ऐसी चीज, केमिकल्स प्रोसेस फूड छोड़ के कोई भी हार्मफुल नहीं है। जो आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन जो भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। और डॉक्टर की बात आपकी मानिए, बाकी लोगों की बात मत मानिए। मुझे खुद आपको बताऊं वर्का जी की काफी लोग अप्रोच करते हैं डॉक्टर्स कि आप मेरे लिए वीडियो बनाओ। अच्छा। मतलब काफी काफी करते, इतने साल में काफी लोग आए। मैं नहीं करता वो सब, लेकिन वो बोलते कि आप कैसे बताओ कि मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट ली है या मैंने ये कंसल्ट किया है वो किया है, ये सब ऐसे। और आपको अगर ये वीडियो भी कोई दिखाता है ना कि ये वीडियो देखो ये बंदा ठीक हुआ ये डॉक्टर के पास, तो ऐसे काफी लोग डॉक्टर है जो झूठ वीडियो बनाते हैं। सीरियसली बहुत बहुत आजकल कैंसर के पीछे लोग ना बहुत पैसा कमा रहे हैं, झूठे ऐसे सब काम। तो आपके डॉक्टर पे आपका भरोसा है तो बस भरोसा रखिए। और हम लोग जैसे सर्वाइवर से पूछिए, आप जो इसमें से गए वो आपको झूठ नहीं बोलेंगे, आपको सही बात कर बताएंगे कभी भी। ओके, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, नो प्रॉब्लम। यू आर फैमिली मेंबर, डोंट वरी बरखा, वी आर विद यू। हम तो एक फैमिली जैसे हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, यू नो, सबको एक दूसरे को शेयर करते हैं अपनी बातें, एंड वी आर सो हैप्पी फैमिली ओवर हियर। I know. Don't worry, always we are there with you and be positive always. आपकी जर्नी बहुत अच्छी तरह निकल जाए, हम लोग प्रे करते हैं जल्दी ठीक हो जाए आप। थैंक यू। I wish you. और आप भी हमें अपना एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ही समझेंगे, तभी आप फ्री होके कॉल करेंगे, बात करेंगे ना। रात में भी नींद नहीं आ रही जैसे अंजलि जी बोली ना, तो आप रात को 2 बजे भी मुझे फोन कर सकती हैं। कितनी बार होता है कि रात में नींद नहीं आ रही है। मेरे ड्रॉअर में क्या है? चॉकलेट्स छुपा के मीठा मीठा शुगर काम करते करते खाते हैं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। गुड गुड। ठीक है। पूनम जी कुछ बोल रहे हैं आपको? एकदम शांत है। पूनम तिवारी जी, पूनम जी का वीडियो ऑन नहीं है। हेलो पूनम जी। नहीं, I don't think उनको बात करने। Yeah, maybe some network issue. Yeah, maybe हो सकता है, हाँ, maybe हो सकता है। Yeah. All right. Annie दिख रही है। Annie is there. Hi Annie. Hi. How are you? I'm here. I'm good. You know मेहुल जी, मैंने एनी से बात किया, वो मेरे कास्ट की निकली, नो, शी इज फ्रॉम केरला। आई कैन स्पीक मलयालम। क्या बात कर रहे हो? Yes. अरे मुझे लगा गुज्जू है। Yeah, my hubby is Gujju. No, Yes, married to Gujju. अच्छा, तो फिर तब अच्छा है, पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क कर दिया आपने। हाँ, yes, my बहू is Maharashtrian. सब है घर में, सब है, ऑल ओवर इंडिया वाले लोग हैं। आपके घर का नाम रखो मेरा भारत महान, क्योंकि आपके घर में सभी स्टेट के लोग हैं, इसलिए मेरा भारत महान है। अभी yes, मेरा भी ऐसे ही है। yes. गुज्जू, मेरी वाइफ महाराष्ट्र। ओह वाओ, आपके घर में भी सब मिक्स है। यस, इट्स गुड, वी ऑल आर हियर, यू नो। तो हम लोग स्कूल में मिले थे, तो हम दोनों हिंदी और इंग्लिश में बात करते और बच्चे से मराठी में बात करते। तो कोई हमारे घर पे आता तो कंफ्यूज हो जाता, यार ये क्या फैमिली है, मतलब। फिर उनको बोलना पड़ता है ये हमारा पहले से ऐसा चल रहा ना, सो इसलिए ऑल लैंग्वेजेस हम बात करते। यस, मेरे घर में मेरे हस्बैंड गुजराती बोलते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ, लेकिन जब कोई मेरे वाले आते हैं मैं मलयालम बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे डेंटिस्ट के पास जाती हूँ ना, मैं डेंटिस्ट के पास मेरा अपॉइंटमेंट होता है हमेशा क्लीनिंग के लिए सब, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर पेजेंट एंड ऑल, नो। तो डॉक्टर भी मलयाली है, तो मैंने उसको पूछा, डॉक्टर पूछा इनको आता है क्या मलयालम? मैंने बोला नहीं, आप गाली भी देंगे उसको पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब आप आपके हस्बैंड को ना उसकी बुराई मलयालम में करते, मैं उनको बताऊंगा अभी गुजराती में। लेकिन मैं किसको करूँ, कोई है ही नहीं ना करने के लिए। मेरे जो फ्रेंड्स है सब गुज्जू है। वो डॉक्टर तो बेचारा डॉक्टर है, क्या करे। But he is heads off. He is a good man.
अच्छा हस्बैंड है, टेकिंग केयर ऑफ मी। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फ्रेंड्स अगर बोलते हैं अंजलि का हस्बैंड जैसा सबको मिलना चाहिए करके, मैंने बोला सबको नहीं मेरा हस्बैंड मिलेगा, मेरे को मिलेगा। नहीं गुज्जू लोग अच्छे होते हैं, गुज्जू लोग अच्छे होते हैं। ही इज टू गुड, हेड्स ऑफ टू हिम, क्योंकि मेरी जर्नी है जो भी है, बिकॉज ऑफ हिम टुडे आई एम डूइंग ऑल माय थिंग्स एंड एक्टिविटीज एंड ऑल, ही टेकिंग केयर ऑफ ऑल यू नो फन साइड एंड ऑल, मुझे कुछ टेंशन नहीं, एंड ही नेवर गिव्स मी टेंशन। अभी क्या, अच्छा मेहुल जी एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, लास्ट वीक से मुझे है ना रात को हिकअप्स आती है, आई एम गेटिंग हिकअप्स एट नाइट, नींद में। अब वो कभी कभी ना मुझे लगता है मेरे डैड को होता था ये प्रॉब्लम, तो उनका जो डायफ्राम है ना, जो लंग्स के नीचे जो उसमें थोड़ा सा वो कुछ तो भी उसमें प्रॉब्लम होता था। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो आयुर्वेदिक मतलब वो अच्छा उसको नॉलेज था, तो उसने बोला कि जो इलायची है ना, इलायची कूट के पानी में डाल के उसको उबाल के नॉन स्टॉप पी जाओ टॉप टू बॉटम, जब चालू होता है उससे उनको बंद हो गया। तो आप ट्राई करके देखो, फिर भी अगर नहीं बंद हो रहा तो मे बी डॉक्टर से एक बार पूछ लो फिर क्या है। क्योंकि मैंने सोचा एक बार हो रहा है तो मैं उठ के बैठ गई, फिर ठीक हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 3-4 बार हुआ मुझे, मैं थोड़ा डर गई, आई थॉट मे बी कैंसर रिलेटेड कुछ होगा करके, आई हैड सम वाटर, फिर ठीक हो गया। फिर वेरी नेक्स्ट डे वापस 3-4 बार हुआ, तो मैं मेरे हस्बैंड को नहीं उठाई, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, लाइक फिर मैं बैठ के उठ के फिर थोड़ी देर बैठी, मैंने वॉक किया, पानी पिया तो रुक गया। बट आई एम गेटिंग यू नो फ्रीक्वेंटली आई एम गेटिंग दिस। मैं आपको भेजता हूँ कुछ, अभी मैं थोड़ा रिसर्च करके देखता हूँ क्या है। आप ना इलेक्ट्रॉल का पानी भी ट्राई करके देखिए अंजलि जी। ओके, इलेक्ट्रॉल का पानी थोड़ा सा मतलब हाफ ग्लास पी लेना आप, कभी तो जब आएगा तभी, चला जाए, जब हिचकी आया तभी। ओके, जब हिचकी आया शुरू हुआ जैसे ही, तो हाफ ग्लास इलेक्ट्रोलाइट का वाटर होता है ना अपना, वो आपने पी लेना बस, तो होपफुली इट गोज। ओके, मैं डर गई, बहुत डर गई मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने फिर अब हमारे साथ कुछ होता है तो सबसे पहले हमारी दिमाग की बत्ती वहीं चलने लगती है। नो आई एम रियली स्कैर्ड यू नो। मैंने बोला मैं बोलूंगी, लेकिन ये बस्ती में ना भूल जाती हूँ ना, तो मैं मेहुल जी को पूछती करके ऐसा हो रहा है क्या करूँ। तो मैंने बोला मेरा आखिरी इच्छा पूरा कर दो, और मेरे वार्डरोब में जितने कपड़े पड़े हैं ना, क्या करोगे इसका। मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा नेक्स्ट डे उठ के, इतने सारे कपड़े क्या करोगे, बोलते तो वही तो मैं बोलता अभी शॉपिंग मत कर, वो तो हो गया। ही टोल्ड मी। अरे आपके हस्बैंड ने बोला चाहिए दूसरी शादी करूंगा और वो कपड़े। नो ही विल नॉट डू। माय गॉड, मैं डर गई सच्ची, मैं डरी हुई थी, अभी तक मैं डरी हुई थी कि रिलेटेड कैंसर होगा कि क्या होगा पता नहीं। मैं डॉक्टर को तो मिली नहीं, दिवाली का टाइम है तो मैंने कुछ बोला नहीं। नहीं मुझे नहीं लगता हिचकी और कैंसर का कुछ मैंने नहीं सुना है, मतलब कुछ कनेक्शन। फिर भी मैं जरा देखता हूँ रिसर्च करके और फिर आपको भेजता हूँ। क्योंकि हम लोग खाना भी जल्दी खा लेते हैं, 7:30 तो वी हैव आवर डिनर, फिर रात को एक हल्दी वाला दूध पीती हूँ 10:30-11 बजे न्यूज देखते देखते। हाँ मेरे डैड को होता था ना ऐसे, उनको फिर डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला कि डायफ्राम जो है ना उनका इन्फ्लेशन होता था उसमें, इसलिए मतलब वो तो उनका ओल्ड एज था, कभी 75 प्लस। आई एम आल्सो ओल्ड यार, आई एम नॉट यंग। अरे नहीं मतलब वो आपके इतना एक्टिव भी नहीं थे, वो ऐसे बैठे रहते थे दिन अच्छा, भर ओके, ऐसे। हाँ, तो वो इलायची का पानी पीने से तो उनको इमीडिएट रिलीफ मिलता था, लेकिन नहीं वो टेम्पररी था। ओके ओके, उस टाइम के लिए वो रिलीफ मिल जाता था, बट फिर डॉक्टर बोला अभी इनको ऐसे ही चलने दो जो करके, फिर वो किया नहीं, आ गया हमने, बट वो ऑटोमेटिक ठीक हो गया। लेकिन टेंशन मत लो, कुछ नहीं उसका। और सेकंड थिंग, आई टुक द कोविड का वैक्सीनेशन मेहुल जी, और मेरा हाथ बहुत पेन हो रहा है अभी, लास्ट मंथ लिया था मैंने। दिस हैंड नो आई कांट रेज अप बिकॉज ऑफ दैट इंजेक्शन वैक्सीनेशन, उसकी वजह से ही क्या? नो आइडिया, मुझे नहीं लगता उसकी वजह से होगा। नहीं, अदरवाइज आई डोंट गेट एनी दिस पेन एंड ऑल, ये पहली बार हो रहा है मुझे, तो थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे। मैं बोली दिवाली के बाद डॉक्टर को बताऊंगी मैं। एक बार दिखा दो ना, एक बार दिखा दो, अच्छा रहेगा। Because that time it was paining when I got the vaccination. 2 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, 3-4 दिन का मुझे ऐसा गट्ठा जैसा हुआ, पेन हो रहा था सेकंड डोज में, because we taking the left hand only. उसके बाद ठीक हो गया। बट इतना दिन नहीं होना चाहिए, सेकंड डोज थोड़ा हार्ड, हम सबको तकलीफ होता है सेकंड डोज से, बट हाँ But that place only paining, और ये मसल्स, यहाँ का जो मसल्स है ना वो, और यहाँ पे दर्द हो रहा है। अच्छा देखो, नहीं तो एक बार दिखा दो, बेटर साइड, सेफर साइड, मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा ना, आपका भी टेंशन खत्म। ये 2 चीज आया लाइफ में मेरे अभी कैंसर के बाद। अभी एक्चुअली मुझे भी पिछले दिनों ये
कंधे की टिप से लेकर के हाथ तक बहुत ज्यादा दर्द आ रहा था। Which hand? ये Which hand? ऑपरेट हुआ उस साइड नहीं, उधर तो हाँ। लिम्फेडिमा रहता है, बट हाँ, दूसरी हाँ। साइड पे। Yes. तो आई वाज बिट वरीड, फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने हाँ। मुझे न्यूरो फिजिशियन के पास भेज दिया। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दिए, तो फिर मैंने अपने ऑन्को फिजिशियन को बोला कि सर मैं तो नहीं लेना चाहती स्टेरॉइड्स। हाँ, फिर वो बोले दीदी अपनी एक बार पेट स्कैन करा लेते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली पेट स्कैन कराया, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन लाइक ऐसा। तो फिर वो बोले सिर्फ फिजियोथेरेपी। मेरे हाथ का मूवमेंट पूरा है, बट एकदम रात में मुझे ऐसे ऐसे जैसे हाथ पटकना पड़ता है ना, वो हो रहा था ऐसे। ये Same thing happening with me. Yeah, same thing happening with me. या तो मे बी B12 भी कम हो जाता है कभी कभी, उस वजह से भी हो जाता है। और ये फिजियो, मेरे को तो फिजियोथेरेपी एडवाइस की, तो आई विल जॉइन आफ्टर दिवाली लाइक ऐसा। Okay. तो होपफुली कुछ नहीं होगा। Okay, B12 है, कैल्शियम सब लेवल में मेरा, और Okay, रिपोर्ट सब fine, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं कभी कोई जाती हूँ पाँव की वजह से, कभी कभी मुझे पाँव में सूजन Okay. चढ़ जाती है, बहुत बहुत कुछ करती रहती हूँ ना। और मैंने क्या सोचा, मैं रोप का एक्सरसाइज करती होगी ना, शायद रोप लग गया होगा, जाड़ा रोप है ना मेरा, शायद उसके में। लेकिन उसका तो दोनों, लेकिन ये तो डेड है ना अपना, ये नम है हाथ, इससे पता नहीं चलेगा अपने को, वो एक डाउट है मुझे। फिजियोथेरेपी मेरे को बोली कि जैसे मैंने उनको पूछा कि क्या कॉज हो सकता है ना, तो फिर हाँ। जैसे बोल रही थी कई बार हम बहुत देर गर्दन झुका के रखें या बहुत ऊपर भी रखते हैं तो हो जाता है। तो जैसे मेरे केस में मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ तो मेरा गर्दन ऐसे झुका हुआ और रहता है, हाँ। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आप एक बार डॉक्टर को तो कंसल्ट कर ही लें, देन गो टू फिजियोथेरेपिस्ट। इट्स पोकिंग लाइक यू नो, कभी कभी पोक होता है, ऐसा पोक होता है, यू नो। आई कैन अंडरस्टैंड। अभी मैं इस दौर से मतलब गुजरी हूँ और अभी भी हो ही रहा है कि एक टिप मैं क्या, बस मुझे कुछ होता है ना, मैं जल्दी टेंशन ले लेती, सोच में बैठ जाती, क्या होगा क्या होगा, मैं मरूंगी तो नहीं ना। मैं हस्बैंड को पूछती, मेरे को कुछ होगा नहीं ना, मरूंगी तो नहीं ना, पूछते, बोलते चुपचाप बैठती, बीजू का इतना याद आ गया, इतना ही बोलेगे, मरवानी मैं बात तो है। इतना आगे जाके सोचती नहीं। देखो मेरे को आज का पेट स्कैन, तो मैं बोली कि हाँ 100% क्लियर आएगा। आज का सेशन खत्म करना है, इट्स ऑलरेडी 4:32। चलो लेट्स टॉक लेटर। आज का सेशन था अपना फियर ऑफ रिकरेंस, और ये उसके लिए बात कर रहे हैं अंजलि। अच्छा है ना, मुझे पता चल गया ना रेमेडी सब, मेहुल जी मुझे रेमेडी पता चल गया, अनुराधा जी ने बताया, आपने बताया, नहीं तो मैं वही सोच में डूबी रहती, मुझे क्या हो रहा है क्या हो रहा है करके। नहीं, ऊपर वाला आपको लेने वाला नहीं इतना जल्दी, वो बोलेगा आप उधर नीचे। कोई कल का कोई भरोसा नहीं है सर, टुमारो नोबडी हैज सीन, किसी ने देखा नहीं। बट अंजलि जी, आई बिलीव कि हम लोगों को भगवान ने इसलिए रख रखा है कि अभी हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम करते रहना है बेटा, बहुत लोगों की हेल्प करनी है, इसलिए भगवान कह रहा है रहो, कोई जल्दी नहीं है तुमको ऊपर बुलाने की। अनुराग जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छी बातें बोली आपने, वेरी हैप्पी। अनुराग जी, मैं आपको मैसेज भी करते रहूंगी, पर्सनल मैसेज करूंगी, बिल्कुल थोड़ा वो बिल्कुल उसके बारे में सब, जो डांस का सेशन है ना, बिल्कुल और आप भी ध्यान मैं तो रखिए। मेरी पूरी टीम के साथ तैयार हूँ। मेरे को तो आज Sure. कोई बोले नचले तो मैं आज चलो तैयार नच लेते। ठीक है। Yeah, I'll be contacting you, Anjali ma'am. I'll be contacting yeah. you for that session, I think. Yeah. Yes. या मुझे बता देना दिसंबर में, मैं उनसे डेट पूछ लेती हूँ कौन से डेट को दे सकती है, देन विल अरेंज करेंगे, जितने जो उनको करना करो, और बहुत मजा आएगा, सच्ची बोलती है, विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। क्योंकि वर्कशॉप में ना, आई अटेंड अदर वर्कशॉप ना, दे चार्ज 2000, 1500 लगाते हैं, इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं, तेरे लिए ना आई एम डूइंग फ्री। मैंने बोला ओके वेरी गुड, मिस आप करो, मैं देखूंगी मेरे लोग कितने खुश होते करके। एंड मैं मेहुल जी कहाँ गए, चले गए? इधर ही मैं। गुड एडवाइस भी मुझे बताया इसके बारे में, हिचकी के बारे में, लाइक यू नो, थोड़ा पूछने के लिए सोच रही थी मैं किसको पूछूं। नहीं, मैं आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। एंड यू आल्सो टेक केयर, हाँ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वेदर जरा चेंज है ना, वेदर के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। एंड फिंगर क्रॉस, टेक केयर, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। यू आर हम लोग का सबसे बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आप अच्छे रहे तो हम लोग अच्छे रहेंगे, यू नो, आपसे तो हम लोग को एनर्जी मिलती है, नो, सब जगह पे एनर्जी जाती है। अच्छा लगता है वी आर गेटिंग एनर्जी। एंड एक दूसरा भी है ना, अमित जी भी कोई है, आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं उनको भी मैंने देखा, मैंने बोला ये सब हमको ना एनर्जी देने वाले लोग हैं, लाइक यू नो, एनीथिंग इज इजी। मेरे हस्बैंड को ही बताया मेहुल जी आने वाले हैं, फिर मैं तैयार होती फटाफट आ जाके लेट हो गया करके, ठीक है करके। एनीवे, एंड किसको भी ब्यूटी पैजेंट का भी करना होगा ना, तो आई कैन टेक देम आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें थोड़ा फीस वगैरह लगेगा, जो भी लेडीज रहेगी अपने ग्रुप में,
लेकिन एक बोलता है ना यूनिटी हो जाता है, सब साथ में जाएंगे तो। मेरे को जज बनाओ। हाँ, आपको जज, चलो चलो चलो, आपको पैसे भी मिलेंगे सामने से। फ्री 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 में करेगा। नहीं 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 नहीं, ये कैंसर सर्वाइवर नहीं है ना, सब पैसे वाले लोग हैं, तो ऊपर लेना चाहिए पैसा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आप बोलेंगे तो ले लेंगे, फिर खुद ही अपन या। आपस में पार्टी कर देंगे हम लोग। हाँ हाँ, वी ऑल विल एंजॉय, के घूमने जाएंगे ना, कहीं कोई प्लेस में सब मिलके घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। यस, वी कैन हेल्प द पेशेंट्स ना, कोई कैंसर नीडी पीपल होगा उसको अपन हेल्प कर सकते हैं, व्हाटएवर वी गेट। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ओडिशा का, सो दे आर अरेंजिंग, लंदन से भी लेडी है, शी इज आल्सो सर्वाइवर, तो मुझे अभी आज ही ऑफर। मैं तो मजाक करता हूँ उतना ही, मतलब वो ब्यूटीफुल लोगों से पहचान हो जाएगी, ऐसे बोला मैं। या गुड ना, मजाक की बात नहीं, वी कैन आल्सो गो फॉर दैट एज अ जज आल्सो, अपन जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको वहां से आना पड़ेगा इंडिया में। हम आएंगे कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग मिलेंगे, आप आए तो बॉम्बे नहीं आए मेहुल जी, मिलते थे ना सबको, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सभी। या विल मेक अ प्रोग्राम, यू नो, सब कैंसर सर्वाइवर्स पेशेंट्स घूमने चले, कहीं पिकनिक चले, मजा आएगा। या डेफिनेटली। चलो फिर मिलते हैं। Okay. Yeah, thank you so much, everyone. Thank you so much, Mehul ji, for the wonderful session, and thank you so much to Anuradha ma'am, Anjali ma'am, and Barka ma'am for making this fun session as well. Thank you. Thank you everyone. Love you so much, and a big hug to everyone. Enjoy. Barka ji, आप भी enjoy करना. Be positive. barka ji, next time बताना आपने क्या क्या खाया और क्या क्या पिया, मतलब। हाँ, right. Sure. Yes, yeah, Mehul ji, thank you so much. You also take care. Yeah, positive. Be positive. Yeah. Bye, Annie. Thank you so everyone. much. Bye bye. Bye. Bye.